Let's start with this chapter. The name of this chapter is coordinate geometry. Basically, Rene Descartes. Rene Descartes is the name of the person. It is 1596 to 1650. ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th सेंचुरी. तो रेने डेस्करेट एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन 17th सेंचुरी में, राइट. एक दिन वो बेड पे लेटे हुए सोच रहे थे. उन्होंने क्या किया, बेड पे आराम से लेटे लेटे सोच रहे थे, तो एक पॉइंट की पोजीशन एक प्लेन के ऊपर ही डेस्क्राइब, ही सोल्व दैट प्रॉब्लम्स. हाउ टू डेस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. एक पॉइंट की पोजीशन एक प्लेन के ऊपर कैसे डिस्क्राइब करनी है, उन्होंने सोल्व कर ली. हिज मेथड वाज द डेवलपमेंट ऑफ द ओल्डर आइडिया ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. So like this, by using this coordinate geometry, we can find out the position of anything like your Google map work today. It gives the accurate position, so it also work on the latitude and longitude. It also check the positions. So basically in coordinate geometry, we will discuss this chapter. We will discuss about the position of any point, right? In honor of Descartes, the system used for describing the position of a point in a plane is also known as कार्टेशियन सिस्टम. तो जो कार्टेशियन सिस्टम हम लोग बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो वो किसके ओनर में मिला था, डेस्करेटे के ओनर में. इस सिस्टम को हमने पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, जो सिस्टम पोजीशन बताता है किसी पॉइंट की एक प्लेन के, उसमें इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम. नाउ लेट मी शो यू द फोटो ऑफ रेने डेस्करेटे टू यू. सो दिस इज द पर्सन हु टेल्स अबाउट दिस coordinate geometry. First, it's in 17th century, 1596 to 1650, right? So basically it is also known as Cartesian system. So Rene Descartes, जो इनका नाम है, उनके नाम के पीछे से जो कार्टेशियन वर्ड हम लोगों ने लिया है, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम भी इसको बोलते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन. क्लास 9th में, क्लास 9 से पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ point on a number line, right? You also know how to describe the position of a point on the line. किसी पॉइंट लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर अगर सपोज इट इज अ लाइन और इसके ऊपर ये नंबर लाइन है, किसी पॉइंट की पोजीशंस भी आपको रिप्रेजेंट करनी आती हैं 9th क्लास में, राइट. सो देयर आर मेनी अदर सिचुएशंस इन विच टू फाइंड अ पॉइंट इफ वी रिक्वायर्ड. सो बहुत अदर सिचुएशंस भी होती हैं जब हमें पॉइंट की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है. Describe its position with reference to more than one line, right? So in this chapter we are going to discuss with more than one line. So more than one line means, suppose if this is the line and this is the second line, right? This is the second line. तो ऐसे अगर यहाँ पे इसको हम लोग x एक्सिस बोलेंगे और इसको y एक्सिस बोलेंगे, right? Now we are going to learn about this two axis and about the plane, right? In this chapter, coordinate geometry. Sir, like in graph? Yes, we make the graphs also here, and we generally represent the position of a point on a plane by using the two lines. That two lines are called as axis. One line is called as x-axis and second line is called as y-axis here, right? Let us understand this with the help of an example here. Now let us understand this with the help of a practical situation. Suppose it is a teacher desk here. Let us move to your classroom when the physical classes are there. So the class look like this, right? So it is a teacher desk here, right? And this is the positions of the students. So एक student यहाँ पे बैठा है, like this is a student here, right? So T shows the teacher desk and S shows the Sonia desk here. सोनिया की डेस्क है. सपोज अगर हमें यहाँ पे सोनिया की डेस्क की पोजीशन का पता करना है, हाउ वी फाइंड द पोजीशन ऑफ द डेस्क ऑफ द सोनिया. So we use this chapter coordinate geometry to find out the position of the desk of Sonia, right? How? Look at this. We need to move to in the two directions. Suppose यहाँ पे हमें जाना है, we move here in this. Look at this, it is at 4, यहाँ पे 4 पे है, and look at it is at 1, यहाँ पे 1 पे है. Suppose तो सोनिया की डेस्क कहाँ पे है, तो हमें इस डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, 4 यूनिट इन दिस डायरेक्शन, और ऊपर की तरफ कितना चलना पड़ेगा, 1 यूनिट, राइट. सपोज एक बच्चा है जो यहाँ पे बैठा है, सपोज वन स्टूडेंट इज सिटिंग हियर, और हमें उसकी पोजीशन पता करनी है. सपोज टीचर है क्लास में एंड दिस इज द डेस्क ऑफ द टीचर एंड सपोज इट्स मी, यहाँ पे हूँ मैं इन द क्लास एंड यू ऑल आर सिटिंग इन द क्लास, राइट. एंड
वन स्टूडेंट इज सिटिंग हियर एट दिस पॉइंट, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है और मुझे उसके पास जाना है. आई नीड टू गो टू दैट चाइल्ड व्हाट ही इज डूइंग, राइट. मुझे उसको देखने जाना है कि वो क्या कर रहे हैं क्लास में. सो नाउ हाउ आई रीच दैट चाइल्ड, बेसिकली आई नीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट चाइल्ड. अगर मुझे उसकी पोजीशन का पता है तो मैं उसके पास इजिली वहाँ पे मूव कर सकता हूँ और जा सकता हूँ. पोजीशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पोजीशन मीन्स अगर उसके मुझे उसके कोऑर्डिनेट पता है. नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड दैट इज यूज्ड इन द चैप्टर, कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट मीन्स सपोज इफ आई मूव इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मुझे कितना मूव करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में यहाँ से मुझे मूव करना पड़ेगा और मुझे इधर जाना पड़ेगा इस बच्चे की डेस्क पे जाने के लिए, राइट. इस डायरेक्शन को बोलते हैं दैट डायरेक्शन, इसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बोलते हैं, राइट. अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ 8 पे, आई एम एट हियर. तो क्या मैं उस बच्चे के पास पहुंच गया हूँ? नहीं. अब मुझे ऊपर की तरफ भी मूव करना पड़ेगा. सो आई नीड टू मूव टू द टू लाइन्स. जब हम लोग टू लाइन्स में मूव करेंगे तो अब मुझे ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा. कितने यूनिट यहाँ पे आने के लिए? यहाँ पे मुझे 6 यूनिट मूव करना पड़ेगा, राइट. 6 यूनिट. तो मुझे 8 यूनिट इधर मूव करना पड़ा और 6 यूनिट इधर मूव करना पड़ा. सो अब मैं बोलूंगा इस बच्चे के कोऑर्डिनेट क्या है, पोजीशंस क्या है इस बच्चे की. तो इस बच्चे की पोजीशन है, अगर मुझे कोई बता दे 8 यूनिट आपको इधर चलना है कोमा, और 6 यूनिट आपको ऊपर चलना है, ठीक है. बीच में मैंने कोमा लगाया. फर्स्ट आई राइट 8, देन आई राइट 6 एंड देन आई पुट द कोमा इन बिटवीन दैट एंड इफ आई पुट इट इनटू द ब्रैकेट्स, अगर मैं इनको ब्रैकेट में रख देता हूं, सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं. एंड इफ आई नीड टू आस्क व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, सोनिया के कोऑर्डिनेट क्या है? सोनिया का एक्स की डायरेक्शन में 4 कोमा और वाई की डायरेक्शन में 1, सो इट्स 4 कोमा 1, राइट. Now look at this. I am talking about the two lines here in the previous discussion. Again, I am as many times I have used these two lines here. So now basically this line is called as horizontal line. This line horizontal line, and there is one is the vertical line. So this line is called as vertical line, right? So I have the different names for these lines also. So one line is called as horizontal line and one line is called as vertical line. So we have the different names also for these horizontal line and vertical line. The name of the horizontal line is x axis. इसको हम लोग x axis भी बोलते हैं, this horizontal line, right? And this vertical line is called as y axis, right? And where these two lines meet with each other, जहाँ पे एक दूसरे को दोनों intersect कर रही हैं like this, ये intersect, that intersecting point, origin. Yes, absolutely right. That origin, that point is called as intersecting point is called as origin, right? It's called as origin. And if we move in the rightward direction or in the upward direction, जब हम लोग right जाते हैं या जब हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है. जब आप कोई भी सही काम कर रहे होते हैं, सपोज लेट अस अंडरस्टैंड इट विद अ प्रैक्टिकल डेली लाइफ सिचुएशन. अगर मैं कोई भी सही काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जीवन में अगर मैं सीधे रास्ते पे जा रहा हूं तो उसमें क्या होगा, मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है. अगर मैं पॉजिटिव कब रहूंगा, मैं अगर मैं पॉजिटिव रहूंगा, अगर मैं राइट वे में, ऐसे समझते हैं, अगर मैं कोई सही काम कर रहा हूं, आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, देन इन माई लाइफ इट इज अ पॉजिटिविटी इज ऑल्सो देयर एंड आई मूव अपवर्ड इन माई लाइफ ऑल्सो. अगर मैं कोई सही काम कर रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ अपने जीवन में, तो क्या होगा, मेरे जीवन में पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और मैं अपने जीवन में ऊपर की तरफ भी मूव करूंगा, राइट. सो लुक एट दिस. इफ यू मूव राइट वर्ड हियर, लेट मी कनेक्ट दिस सिचुएशन विद दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हियर. अगर मैं राइट में जाता हूं, सो दिस डायरेक्शन इज राइट, सो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट. एंड इफ आई मूव अपवर्ड, if I move upward, so then that is the positive y axis, right. And if I move, अगर मैं लेफ्ट में जाता हूं या डाउन जाता हूं, अगर मैं कोई यहाँ पे लेफ्ट में जाता हूं, लेफ्ट में मतलब अगर मैं गलत डायरेक्शन में जाता हूं, उल्टी, लेफ्ट मतलब उल्टी डायरेक्शन में जाता हूं, तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो इट्स माइनस एक्स. एंड अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं, नीचे की तरफ, तो क्या होगा, कम होगी कोई चीज है नीचे की तरफ जो चीज जाती है, तो क्या आएगा, माइनस वाई की तरफ जाएंगे, राइट. अब इस पे नंबरिंग्स में रिप्रेजेंट करता हूं. नंबर लाइन पे आपको पता है, राइट में आप जाते थे पॉजिटिव होता था, लेफ्ट में आप जाते थे तो नेगेटिव होता था. तो नंबरिंग रिप्रेजेंट करूं तो 1 2 3 4. सो इन दिस डायरेक्शन इट इज द पॉजिटिव नंबरिंग एंड इन द अबाउट डायरेक्शन ऑल्सो इट इज द पॉजिटिव नंबरिंग.
and in the left direction it is negative. So in the left direction it is negative, in the below direction it is negative numbering, right? So this thing, suppose if I need to represent the position of this point, अगर मुझे यहाँ पे एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन का पता करना है या मुझे इस पॉइंट के ऊपर जाना है, तो मुझे इस पॉइंट की दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि मुझे एक्स की डायरेक्शन में कितना मूव करना है और वाई की डायरेक्शन में कितना मूव करना है। सपोज मैं ओरिजिन पे हूँ और मुझे उस पॉइंट पे जाना है, तो इस पॉइंट पे जाने के लिए मेरे पास रास्ता ये है। तो पहले मैं यहाँ पे आऊँगा और फिर मैं इधर ऊपर की तरफ जाऊँगा, ठीक है। अब मुझे राइट कितना चलना है और अब कितना चलना है इसका पता करना है, राइट। सो राइट मुझे कितना चलना है 4 यूनिट, अब मुझे कितना चलना है, चेक करिए कितना ऊपर जाना है 3 यूनिट। तो 4 एक्स को पहले रखेंगे, वाई को पहले, सेपरेटेड बाय कोमा एंड पुट इट इनटू द कर्ली ब्रैकेट, देन दिस थिंग इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस डिटेल इन नेक्स्ट क्लास। Okay, let me explain this to you once again, whatever I have explained here. Basically there are two lines are there. One is like this, it is called as horizontal line, written this here, horizontal line, right? This is the line, this line, green line, this green line is called as horizontal line, and this red line is a vertical like this, so it is a vertical line, राइट। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का हमने एक नाम दे रखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड नेम इज एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बोलेंगे बार बार, टू बिग वर्ड, सो वी यूज एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। और वर्टिकल लाइन को हमने एक नाम इसका रख दिया है, ये वर्टिकल लाइन इसका इट इज, ये इसका घर का नाम है, इसको स्कूल का नाम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे, ये बुक काफी बड़ा नाम है, तो वी यूज वाई एक्सिस फॉर दिस रेड लाइन, राइट। और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ये लाइन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है हमारे पास, सपोज 4,3 एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट पी है, 4,3 भूल जाओ अभी, एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मुझे जाना है और मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो मैं सीधा सीधा चलूं, यहाँ से इधर आया, 4 यूनिट में एक्स एक्सिस की तरफ चला और 3 यूनिट में ऊपर की तरफ चला, तो मैं यहाँ पे पहुंच गया। राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा, एक यहाँ पे शॉर्टकट भी होगा, जैसे यहाँ से ओ से सीधा पी पे पहुंच जाऊं मैं, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो मुझे इधर जाने के लिए 4 चलना पड़ा और इधर जाने के लिए 3, तो मैंने 4 पहले लिखा, एक्स एक्सिस जो मैं भी कार वगैरह के स्टीयरिंग के एग्जांपल दे रहा था, तो वो यही दे रहा था कि यहाँ पे 4 लिखा और फिर कोमा लगाया, फिर वाई की वैल्यू लिखी, वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन पे कितना चले हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना चले हैं, वर्टिकल लाइन पे 3 चले हैं, तो हम लोग कैसे लिखते हैं 4, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना चले हैं वो नंबर लिखते हैं, कोमा लगाते हैं, फिर वर्टिकल लाइन पे कितना चले हैं वो नंबर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में इसको रख देते हैं। तो ये पूरा जो होता है, जैसे 4,3 जो लिखा हुआ है, ये पूरा जो होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ये जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट। तो 4,3 4,3 and put it into the bracket. This 4 is the distance moved on the x-axis and this 3 is the distance moved on the y-axis, right? इतना कुछ बताया था। इससे आगे हम लोग देख रहे हैं, अगर अभी ये बोल रहे थे कि 3,4 रख दें, अगर इसको 3,4 रख देंगे तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। 3,4 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3 चले, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 4, एक्स की डायरेक्शन में 3 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 4 तो यहाँ पे आ गए, तो 3,4 यहाँ पे होगा पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इंटरचेंज कर देंगे इनकी पोजीशंस तो पॉइंट डिफरेंट हो जाएंगे, लाइक वी इफ वी इंटरचेंज, जो एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया है, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यस सर, जो आंसर आता है उसे कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। यस, कोऑर्डिनेट इज अ थिंग विच डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, राइट। दिस 3, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, कोमा लगाया, फिर y की वैल्यू लिखी और ये ब्रैकेट लगाई, ये दिस टोटल थिंग, सपोज दिस इज पॉइंट Q, सो दिस टोटल थिंग Q 3,4 डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट Q, इस पॉइंट Q की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट, इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जेड कोऑर्डिनेट भी तो होता है। ये सर अभी तो हम एक्स वाई पढ़ रहे हैं, लेकिन एक जेड कोऑर्डिनेट भी तो होता है सर। उसके लिए तो आपको रुकना होगा 1 साल और 2 साल, वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओके सर। नहीं 11th में भी आएगा, 11th में भी आप पढ़ लेंगे थोड़ा बेसिक सा, और डिटेल में उसको 12th में आप पढ़ेंगे, जब जेड एक्सिस भी आ जाती है। इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेन, जब हम लोग 2 एक्सिस बनाते हैं तो एक प्लेन होता है, जैसे आपकी नोटबुक, आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक है।
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मूवी थिएटर में आप लॉन्ग टाइम एगो जब मूवीज देखने जाते थे तो एक मूवी होती थी स्क्रीन पे चलती थी सीधे, उसको बोलते हैं प्लेन, जो वहां पे स्क्रीन पे दिखाई देती थी। ठीक है, अगर आप 3D मूवी देख रहे हैं तो आप जब गूगल से लगा लेते हैं 3D वाले, तो जो चीजें होती हैं वो आपके सामने भी आने लगती हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज जेड एक्सिस, और वो 3D हो जाता है। उसमें 3 एक्सिस आ जाती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एंड बेसिकली हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स अबाउट 2D ओनली। 2D means 2 dimensional, right? And 3D means 3 dimensional. 2 dimensional means one is x-axis and second is y-axis. So we take only the 2 dimension here, x-axis और y-axis. अगर आप 3D देखते हैं तो 3D में थर्ड एक्सिस भी आ जाती है। जो चीजें अभी स्क्रीन पे चल रही थी वो चीजें आगे भी आने लगती हैं, तो वो जेड एक्सिस हो जाती है। इट इज लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अभी मूवी यहाँ पे चल रही है इसके ऊपर। अब अगर मैं 3D में देखूंगा तो जेड एक्सिस भी आ जाएगी, दिस इज द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस आ जाएगी। अब चीजें क्या होंगी, आपके पास भी आने लगेंगी, ऐसे भी मूव करने लगेंगी। ठीक है, जब आप 3D नहीं देखते हैं तो चीजें ऐसे ही मूव करती हैं, अप डाउन मूव करती हैं या लेफ्ट राइट मूव करती हैं। ठीक है, अगर आप 3D में आ जाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जेड एक्सिस में आ जाते हैं 3D 3 डायमेंशनल में, तो चीजें आगे और पीछे भी मूव करने लगती हैं। ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा 3D मूवी देखते हुए। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।